So good morning, students. Today we'll be having a quick revision for your unit test. So let me show you the syllabus first. This is your syllabus for IP in this introduction to Python and then control statements using if else, for loop and while loop. So till here it will be coming in your unit test 1. So let's have a quick revision. Now, coming to Python fundamentals or introduction to Python. So, Python was actually introduced because there were many, I won't say flaws, but complexity there in various other programming languages. What were those complexity? Like in their syntax, like for suppose for C++, if I have to write something, a code, I'll show you one example of C++. If you have to define a variable or declare a variable, you have to declare its data type also in the beginning. So like int a, if you want to declare a variable, this is variable and this is data type. And then you have to provide the value and put a semicolon and so on and so forth. Like suppose if you want to print any statement, so print f was the command. And in Java, this is of C++. In Java, it was for print statement, it was system dot out dot println. So means your syntax for just printing a statement was so big that it was not of no use. So for that purpose, Python was introduced so that various things can be shortened. Your like suppose if a program is of 10 lines in Java, so it would be reduced to approximately 4 to 5 lines in Python. So less coding was needed, programming became easier, so that is why Python was introduced. Now coming to the input and output, like I have told you about C and Java. So in Python, if you have to provide an input, so there are two ways. One is you can declare a variable and the other one is user defined. One is defined and one is user defined. So what is predefined? Predefined मतलब पहले से जो defined हो, पहले से defined में हमने क्या किया, वेरिएबल को एक पहले से डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हमने, फिर वेरिएबल 2 को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हमने. नाउ दीज वैल्यूज आर स्ट्रिंग टाइप. देन सिंपल जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट और हमने प्रिंट कराया तो आउटपुट हमको मिल गया कंप्यूटर साइंस और बीच में एंड लगा हुआ है. सो एंड इज प्रिंटेड एंड देन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. नाउ रॉ इनपुट वाज द मेथड. ठीक है, अब सपोज यू वांट यूजर टू डिफाइन द इनपुट. अभी तक क्या था, ये हमने डिक्लेयर किया था खुद से, प्री डिफाइंड. दिस इज अ प्री डिफाइंड कि डेवलपर एक इनपुट प्रोवाइड कर रहा है. नाउ व्हाट इफ यूजर हैज टू गिव सम इनपुट, कि जो आपका प्रोग्राम चलाए, जो आपका एप्लीकेशन यूज करे, इफ दैट पर्सन हैज टू give the input. So for that, raw input was there till Python 2.x. Python 2.x is previous version of Python. Okay, right now we are using Python 3.x. 3.x, x means any number. The number presently it is 8. Python 3.8 we are using. So x is that number. And similarly, Python 2.x, in this Python 2.x, raw input was there. Raw underscore input was used for taking the input. So the function in Python allows a user to give input to a program from keyboard but in the form of string. तो by default हम इसमें जो भी input करते थे वो string होता था. But what happened? Raw input is deprecated in Python 3. अब Python 3 में इसको हटा दिया गया कि इसकी जरूरत नहीं है. तो उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस किया गया, सिर्फ इनपुट. ठीक है, जब आप जानते होंगे जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसके वेरियस वर्जन्स आते हैं, तो उन वर्जन्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स होती हैं.
तो वही इम्प्रूवमेंट्स और बग फिक्सेस, एक इम्प्रूवमेंट, मेजर इम्प्रूवमेंट था कि इनपुट यूज करना शुरू कर दिया गया रादर देन रॉ इनपुट। तो रॉ इनपुट हमारा 2.x तक था एंड अब हम इनपुट यूज करते हैं 3.x में, if we have to provide user defined input. Now there are various things in Python that are called tokens. तो tokens क्या होती हैं? It is the smallest individual unit in a program. एक सबसे छोटी यूनिट जो भी प्रोग्राम की होगी वो होती है टोकन। लाइक इट कैन बी कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जैसे कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वी हैव स्टडीड की बहुत तरह कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ एक कीवर्ड है, फॉर आपका कीवर्ड है, एंड एक कीवर्ड है। तो वेरियस कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स आर दी रिजर्व्ड वर्ड्स। तो ये हमारा एक टोकन है। देन दी अदर टोकन इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर चीज को। हाँ, वो आइडेंटिफायर क्या हो सकते हैं? वो आइडेंटिफायर हो सकते हैं आपके वेरिएबल्स। जैसे हम वेरिएबल का यूज करते हैं, लाइक a इज इक्वल टू 5, तो a हमारा वेरिएबल है, तो इट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। देन सपोज आपने फंक्शन का कोई नाम दिया है, जैसे हम फंक्शन बनाते थे डेफ, DEF करके हम फंक्शन बनाते थे, तो उसके फंक्शन नेम देते थे, जो फंक्शन नेम था वो भी एक आइडेंटिफायर है। तो इस तरीके से जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करे, किसी आइटम, एंटिटी या क्लास या ऑब्जेक्ट को, उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। देन कम्स लिटरल्स। लिटरल्स आर दी कॉन्स्टेंट्स, जो कांस्टेंट वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक सपोज 5 इज देयर, तो 5 इज अ लिटरल, ठीक है। और आई हैव गिवन सपोज नेम इज इक्वल टू अपूर्व, तो ये अपूर्व जो है ये एक लिटरल हो गया। तो लिटरल्स आर दी कॉन्स्टेंट दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड। फिर ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स वो होते हैं, लाइक सपोज आई एम सेइंग a इज इक्वल टू c प्लस d, तो जो ये प्लस है ये एक ऑपरेटर हो गया। देन कम्स पंक्चुएटर्स। व्हाट आर दीज? Now coming to keywords. Keywords क्या है? Keywords are the reserved words for the compiler or interpreter. अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर मीन्स कि जो एक कई चीजों को एक साथ जोड़ दे, मिला दे और उसको एक सिंगल यूनिट की तरह प्रोड्यूस करे, वो होता है कंपाइलर, ठीक है। और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या है? बिकॉज हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, और वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्जन का काम हमारा इंटरप्रेटर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज यू आर असिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू सपोज रशिया। तो अब रशिया में रशिया के प्रेसिडेंट कुछ रशियन भाषा में बोल रहे हैं, अब वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस भाषा को चेंज कर रहे हैं। यू आर चेंजिंग दैट लैंग्वेज एंड देन टेलिंग तो टू द प्राइम मिनिस्टर कि हाँ उन्होंने रशियन में ये पर्टिकुलर बात बोली। सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। तो वही इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उसे समझ सके इन द फॉर्म्स ऑफ 0 and 1, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा समझता है। सो रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ द कंपाइलर और इंटरप्रेटर विच कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, जिनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। वी हैव सीन कि इफ जैसे ये रिजर्व्ड वर्ड है, फॉर रिजर्व वर्ड है, एंड रिजर्व वर्ड है, हम इनका इस्तेमाल लाइक सपोज वेरिएबल नेम की तरह नहीं कर सकते। जैसे कि मैं लिख दूं नेम की जगह पे एंड इज इक्वल टू अगर अपूर्व लिख दूंगा तो ये रॉन्ग है, ठीक है, एरर आएगा आपको। तो वो एरर क्यों है? बिकॉज की वर्ड्स आर दी रिजर्व्ड वर्ड्स, ये पहले से रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। तो सम ऑफ द कीवर्ड्स आर गिवन बिलो, लाइक एंड, EXEC, नॉट, एज, फाइनली, और बहुत सारे हैं। सिर्फ इतने पे नहीं, इससे भी ज्यादा है। After that comes identifiers. Now, what are identifiers? Python identifier is the name used to identify a variable. या तो एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेगा या तो एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करेगा। मैंने आपको दिखाया, ये देखिए फंक्शन नेम भी हो सकता है, जैसे AOC लिखते थे, एरिया ऑफ सर्किल, तो ये AOC भी आपका आइडेंटिफायर है। ये नेम जो है ये भी आपका आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है। तो ये वेरिएबल्स हो गए हमारे नेम और A, और AOC हमारा फंक्शन नेम हो गया। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है किसी चीज को। तो वेरिएबल हो सकता है चाहे तो वो, या फंक्शन हो सकता है, या क्लास हो सकती है, या मॉड्यूल और अदर
ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को जो आइडेंटिफाई करे इज अ नेम दैट इज गिवन। तो एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स, अब कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए। तो आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद अ लेटर कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम कैपिटल ए 1 इज इक्वल टू 5, कैपिटल ए स्मॉल ए 1 और स्मॉल ए कैपिटल ए 2, ठीक है, ए 2 ए कुछ भी, आपका कोई भी अरेंजमेंट, बस ये ध्यान रखिए कि जो ये नंबर है ये पहले नहीं आएगा, मीन्स इट कैन नॉट बी लाइक, अब ये तो हम वैलिड आइडेंटिफायर हो गए, इनवैलिड क्या हो गए, सपोज आपने लिख दिया 1a या 2z, ठीक है, तो ये आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। तो एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद लेटर ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड और एन अंडरस्कोर या अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है, जैसे कि वैलिड में आ गया अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 5 आपने डाल दिया, ठीक है, तो ये भी आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर है। देन फॉलोड बाय जीरो और मोर लेटर्स, मींस या तो कोई भी लेटर ना हो उसके बाद, या तो उसके बाद कई लेटर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स एंड डिजिट्स। फिर पाइथन डज नॉट अलाउज स्पेशल कैरेक्टर, लाइक सपोज अगर आप लिख दें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 5, तो ये गलत है, ठीक है, आप स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेस, स्पेस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर, कि आप ए और बी लिख दिए बीच में एक स्पेस है अगर, तो ये भी इनवैलिड है, तो किसी भी टाइप का स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, और नंबर से या किसी स्पेशल कैरेक्टर, सपोज डॉट ए आपने लिख दिया तो ये भी नहीं शुरू हो सकता। आइडेंटिफायर्स मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, जैसे कि हम, क्योंकि कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं हम उनका यूज नहीं कर सकते। देन पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दो अलग अलग बातें हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम चीज नहीं है। सपोज आपने लिखा है कैपिटल ए इज इक्वल टू 5 और आप प्रिंट करा रहे हैं कि आपने लिखा फिर प्रिंट स्मॉल ए, तो वो कह देगा कि ये ए जो है डिफाइंड ही नहीं है, ये आपको एरर आ जाए कि ये ए डिफाइंड ही नहीं है। तो क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस मींस अपर केस या लोअर केस, तो ये जैसे अपर केस में आपने डिफाइन किया और यहाँ पे लोअर केस में कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। 10 कैपिटल आर से शुरू हुआ रोल नंबर एंड स्मॉल आर से शुरू हुआ रोल नंबर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। देन सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, ये आपको दिखाई दिया है, सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स ये है। देन कमिंग टू सम एडिशनल नेमिंग कन्वेंशंस, कि आपको आइडेंटिफायर किन जगहों पे कैसे इस्तेमाल करना है। तो जो क्लास नेम होते हैं दैट स्टार्ट्स विद अपर केस लेटर, जनरली जितने भी क्लास नेम्स हैं, अगर आपको क्लास का नाम बनाना है तो वो अपर केस होगा। क्लास, जब हम क्लास की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम उसमें दिखाएंगे आपको। देन starting an identifier with single leading underscore indicates sub identifier is private. Single leading underscore means like this is called single underscore and leading means before. So underscore a means that this is a single leading underscore, so this identifier is private, so it indicates the identifier is private. Then starting an identifier with two leading underscores, two leading underscores means now two underscores are there, there is no space between them, so it would look like they are joined, huh? So two leading underscores, leading means before, coming in the beginning, indicates strong private identifier, that it is strong private identifier. After that, if identifier also ends with two trailing underscore, ends also ends is written, ठीक है, also ends with two trailing underscore, अब दो लीडिंग हो गए, ठीक है, ये दो लीडिंग हो गए, then main, then two trailing, trailing is at the last. Now this shows that the identifier is the language defined special name,
कि दिस इज अ लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम, ये एक तरीका होता है लिखने का, कहाँ लिख यूज किया था, आई विल शो यू ऑल, लाइक डबल अंडरस्कोर मेन, डबल अंडरस्कोर, then double underscore name, double underscore. So these tell that it is language defined special name. Now coming to literals. Now what are literals? As I told you before, like there are various kinds of literal: string literal, integer literal, float, and special literals. So string literal is that is written in either double quotes or single quotes is called string. जो text format होता है आपका वो हमारा string literal होता है. It's not necessary कि वो सिर्फ alphabets हो. Suppose it can also contain numbers, like suppose you are providing address, you have to provide address of your home, so your address is like 13B comma civil lines and all, so various special characters and all come inside the string literals. Then coming to integer literals. Integer are those values which are not decimal values, so they can be positive, negative, or zero. So as we all know, integers are positive, negative, or zero, so these are called integer literals. Like if I am saying a is equal to 5, so 5 is an integer. If I am saying b is equal to -1, so it is also an integer. If c is equal to 0, it is also integer. Then comes float literals. So float literals are like 6.2. So decimal values, like if I am saying d is equal to 6.66, so this is a float literal. ये float literal हो गया हमारा. तो इसी तरीके से हम अगर डेटा टाइप्स की बात करें, सो डेटा टाइप्स कितने होते हैं? नाउ कमिंग डेटा टाइप्स. सो इन डेटा टाइप्स, one is numeric, then is string, then comes mapping or sequence. You can write sequence. Under sequence, various subcategories are there, like list, tuples, dictionaries, sets, mappings. ठीक है. String you all know. Under numeric, it can be integer, can be float. Another type of data type is there, that is called boolean. Now this boolean gives the result as either true or false. या तो true होगा या तो false होगा. ठीक है. तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं दैट आर देयर इन पाइथन. सो इसी के अकॉर्डिंग हम लिटरल की वैल्यू पास करते हैं. देन स्पेशल लिटरल, दैट इज नन. नन मतलब कि कुछ नहीं. यू आर सिंपली टेलिंग दैट देयर इज नथिंग इनसाइड नेम, सो यू कैन गिव नन आल्सो एज स्पेशल लिटरल. Now coming to escape sequence. Escape sequences are, now what if suppose I am making a program like I have to print. ठीक है, मुझे print करना है कुछ, and I am printing in double quotes like sum is, then colon, डबल कोट्स. तो हमने कॉमा लगा के प्रिंट कर दिया जो भी ऊपर सम का वैल्यू था. ठीक है. नाउ अब सपोज सम्स वैल्यू इज, अगर मुझे ऐसे लिखना है और इसको मैंने सिंगल कोट में पास करना हो, और मैं लिख दूं सम्स वैल्यू इज. नाउ सम्स अगर मैंने किया अपोस्ट्रोफी जैसे ही लगाया और उसके बाद फिर मैं यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाता हूँ, तो आप क्या होगा कि ये वाला यहीं पे ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हो गया, और यहाँ पे हम जो क्लोजिंग दे रहे हैं वो अब एक ओपनिंग हो जाएगा. आई विल शो यू. I suppose I have to write a is equal to 5. ठीक है. b is equal to 6.
then C is equal to A plus D, and then I am printing it. Print sums value is कोलन. अब देखिए यहां पे ये शुरू हुआ है एंड यहीं खत्म हो गया, तो ये ग्रीन कलर सिर्फ इतने में है. नाउ हमें क्या चाहिए कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस हमको अंदर पास करना है, तो इसका कोई एक तरीका हो. तो हम क्या करेंगे, बैक स्लैश लगाएंगे. ये बैक स्लैश होता है, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लैशेस, मैं दिखाता हूं. एक ये हो गया, दिस इज कॉल्ड बैक स्लैश, एंड दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश. फॉरवर्ड स्लैश जनरली आप अभी तक यूज करते थे, लाइक डिवीजन के लिए आप यूज करते थे, और फ्लोर डिवीजन के लिए यूज करते थे. तो ये आपका फॉरवर्ड स्लैश, और आपने आज तक इसको अपने रियल लाइफ में भी, मैथमेटिक्स में भी यूज किया होगा. बट दिस बैक स्लैश ये हम यूज करते हैं, ये एंटर की के ऊपर आपको मिल जाएगा. सो बैक स्लैश, नाउ अपोस्ट्रोफी आई विल पुट, एंड यू कैन सी बैक स्लैश के बाद जब हमने अपोस्ट्रोफी लगाया तो वो अपोस्ट्रोफी एस इसने ले लिया है. देन कॉमा सी. हम इसको प्रिंट करते हैं. नाउ यू कैन सी कि सम्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ हमारा ये प्रिंट हो रहा है. ठीक है. सो एस्केप सीक्वेंस क्या है? द प्रोग्रामर्स refer to the backslash character as an escape character, कि हम वहां से escape कर रहे हैं. In the other words, it has a special meaning when we use it inside the strings. अब हमने इसको कहाँ पे यूज किया है? कि स्ट्रिंग के अंदर यूज किया. ये एक स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको यूज किया है. As the name suggests, escape character escapes the characters in a string for a brief moment to introduce यूनिक इंक्लूजन. एक अगर यूनिक इंक्लूजन हमको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे क्या यूनिक इंक्लूजन था कि हमको अपोस्ट्रोफी लाना था. ठीक है. सो फॉर दैट यूनिक इंक्लूजन हमने इसका यूज किया. तो अब कुछ एग्जांपल्स है, लाइक बैक स्लैश एन. बैक स्लैश एन यूज होता है अगर हमको अगली लाइन पे जाना हो. तो सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं अगर बैक स्लैश एन, नाउ आई सेव इट एंड रन इट, तो ये आप देख सकते हैं ये अगली लाइन पे आ गया. ठीक है. तो बैक स्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन. बैक स्लैश टी इज फॉर प्रोवाइडिंग टैब. ठीक है. अगर आपको टैब स्पेस देना है, सपोज मुझे 2 टैब का स्पेस देना है, तो मैंने 2 बार बैक स्लैश टी कर दिया, सेव करके रन किया. आप देख सकते हैं बीच में 2 टैब जनरेट हो गए, एक ये टैब और फिर ये दूसरा टैब. ठीक है. आफ्टर दैट अपोस्ट्रोफी मैंने दिखा, इसी तरह डबल कोट्स के साथ भी आप कर सकते हैं. देन आपको कुछ फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो आप एफ भी लगा सकते हैं. ये सब एस्केप सीक्वेंस हमारे होते हैं. यहां तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर. ओके. नो सर. देन कम्स ऑपरेटर्स. अब आते हैं ऑपरेटर्स. तो व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स. अगर हमें अब होता क्या है, सपोज हमने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस B. तो ये C जो है और ये B जो है, ये हमारे होते हैं ऑपरेंड्स. ये हमारे ऑपरेंड्स हैं. और ये जो हमारा प्लस है या माइनस या डिवाइड जो भी, वो हमारा हो गया ऑपरेटर. ठीक है. तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज सिंबल्स. तो ये एक सिंबल है. ठीक है. दिस इज अ सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस. कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है किस पे? ऑपरेंड्स के ऊपर. जो उसके साथ के ऑपरेंड्स होते हैं उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है. दोज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. तो नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. तो 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर. अरिथमेटिक ऑपरेटर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर. देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, कि अगर आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है किन्हीं चीजों में. देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अगर आपको वैल्यूज असाइन करनी है. ठीक है. जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये
इक्वल टू लगा है, सिंगल इक्वल टू, दो तरह के इक्वल टू होते हैं, सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो सिंगल इक्वल टू यूज होता है असाइनमेंट के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी चीज इसका रिजल्ट आएगा उस चीज को हम असाइन कर रहे हैं सी के अंदर। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सी बराबर है ए प्लस बी के। जैसे कि मैथ्स में आप पढ़ते थे, अभी तक आपने 10 तक मैथ्स में पढ़ा, लाइक सपोज सी इज इक्वल टू 5, तो देयर इट मेंट कि सी 5 के बराबर है। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन आगे परफॉर्म करते थे तो उसमें आप इसको बराबर लेते थे, बट यहाँ पे क्या है, ये बराबर नहीं, इसका मीन्स कि 5 जो है वो सी के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, 5 सी जैसा ही हमने लिखा तो एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर 5 लिख दिया गया है। ठीक है, सी जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ सी का, उसके अंदर 5 हमने लिख दिया, इसका ये मतलब, तो हमने वैल्यू को असाइन किया, उसको प्रोवाइड किया है। तो दोज आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अभी क्या है, देन बिटवाइज मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। नाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इफ यू हैव टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मेरा फोकस ये है मेन मॉडुलस, जो कि आपका रिमाइंडर रिटर्न कराता है। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, कि हमारा रिमाइंडर क्या है, लाइक 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 10 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0, बिकॉज 5 2 ज़ा 10, यहाँ 10 हो गया, माइनस लगा और यहाँ पे आपका 0 आ गया। तो जब आपको ये 0 चाहिए होता है तो हम मॉडुलस यूज करते हैं। 0 क्या चाहिए होता है, मीन्स आपको रिमाइंडर चाहिए होता है बेसिकली, तो रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलस का यूज करते हैं, दैट इज परसेंटेज सिंबल। देन डबल टाइम्स डिविजन, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिविजन। फ्लोर डिविजन मतलब रिमूव्स द डिजिट्स फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट ये हटा देगा। लाइक सपोज इफ 5.5 इज रिटन, तो ये 0.5 को ये इसने को हटा देगा। ठीक है, देन देयर इज एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट के लिए डबल एस्ट्रिक, सिंगल एस्ट्रिक होता है आपका कि मल्टीप्लाई करने के लिए, लाइक a इंटू बी। बट अगर मैं लगा दूं a डबल इंटू बी, तो इसका मतलब हो गया a टू दी पावर b। ठीक है, इसका मतलब होता है a टू दी पावर b। नाउ कमिंग टू रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, जब आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल इक्वल है, तो डबल इक्वल मीन्स इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू इफ ए इक्वल्स टू बी। अगर हम इसको लिख देते हैं तो ये हमको ट्रू देगा। जैसे हमने आपको बताया था कि बूलियन वैल्यू देता है, दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर लाइक ए के अंदर 5 था एंड बी के अंदर भी 5 था, सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन वी विल गेट ट्रू, अदरवाइज वी विल गेट फॉल्स। देन उसके बाद ये होता है नॉट इक्वल टू, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल इक्वल टू मतलब होता है नॉट इक्वल टू, अगर आपको नॉट इक्वालिटी चेक करनी होती कि क्या इसके बराबर नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। तो ये हम कंपैरिजन करते हैं बेसिकली रिलेशनशिप ऑपरेटर्स में। देन कम्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू को जब असाइन करना होता है किसी में, तो असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू दी लेफ्ट साइड। ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे असाइन होती है वैल्यू। ठीक है, देन a प्लस इज इक्वल टू b, तो एड्स टू नंबर्स एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसका मतलब क्या है, a प्लस इज इक्वल टू b, जैसे हमने लिखा अगर a प्लस इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब होता है इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का कि a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, लाइक सपोज अगर a हमारा 2 था, ठीक है, एंड b हमारा 1 है, और हम कह रहे हैं कि a प्लस इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a हमारा क्या था 2 और b हमारा क्या था 1, तो 2 प्लस 1 हो गया 3। दैट मीन्स अब a की अपडेटेड वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट a करते हैं, प्रिंट a, तो ये आपको 3 देगा एज दी आउटपुट।
क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसकी बढ़ गई है। Then similarly with the division, multiplication, subtraction, modulus, floor as well as par. तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जगह आप सीधा इस तरीके से भी आप वैल्यूज को परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। देन कम्स लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जहां कुछ लॉजिक इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके लिए क्या है? एंड और नॉट। तो इसकी ट्रुथ टेबल होती है, लाइक एंड का मैं दिखाता हूं, ठीक है, एंड का और का, ठीक है। तो एंड का लाइक सपोज देयर आर टू इनपुट्स x और y, ठीक है, और z इज द आउटपुट, ठीक है। इज सिमिलरली हियर x और y हमारे इनपुट हैं और z हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो अब एंड ये कहता है कि इफ x इज x इज फॉल्स एंड y इज फॉल्स, तो z हमारा फॉल्स होगा। इफ x इज फॉल्स, y इज ट्रू, तो भी ये फॉल्स होगा। इफ x इज ट्रू, y इज फॉल्स, तो भी हमारा फॉल्स होगा। When both are true, then only the result will be true. कि दैट मीन्स जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक ये ट्रू नहीं होगा। और क्या कहता है कि इफ x इज फॉल्स एंड y इज फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स होगा। इफ x इज फॉल्स, y is true, result will be true. If x is true, y is false, result will again be true. And if x and y both are true, then also it will be true. तो इसका ये कहना होता है कि दोनों कंडीशन, x कंडीशन और y कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। और ये क्या कहता है कि अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, तो ये आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड नॉट का क्या होता है? नॉट का सिंपली इट्स द कॉम्प्लीमेंट, लाइक x इज गिवन फॉर y, तो अगर x 0 है तो y 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल उल्टा हो जाता है उसका। ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। So logical operators are used for performing logical operations on given two variables or values, ठीक है। So and जैसे एंड क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। और क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर और बोथ कंडीशंस आर ट्रू, या तो कोई एक कंडीशन ट्रू हो या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। देन नॉट मींस रिवर्स ऑफ द कंडीशन, कि उस कंडीशन का जस्ट उल्टा, ऑपोजिट। आई होप सो यहां तक क्लियर है सभी को।